विक्टर ओरबान ने दिल जीत लिया, क्यों? We know that family is the place to transfer the values of parents to the next generation. If traditional families are gone, there is nothing that can save the West from going under. Therefore, last year in Hungary, we spent more than 6% of our GDP on family policy. All subsidies are already available to families following conception. Families automatically get tax breaks. The state takes over your student loans after your third child. Women are exempt from paying personal income tax for life after the birth of their fourth child. And we are fighting to extend the same zero tax policy for mothers with 3 children. चौथा बच्चा हो जाएगा तो माँ को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स। So, if you are not married yet, you should immediately find a Hungarian wife. In the last 10 years, ladies and gentlemen, in the last 10 years, the number of marriages has doubled and the number of abortions has halved in Hungary. सोचिए, कहते फैमिली वैल्यूज को बचाना हमको। 6% अपना जीडीपी का इन्होंने उसमें खर्च कर दिया फैमिली के ऊपर। भारत में भी होना चाहिए, भारत में हर हिंदू महिला के लिए होना चाहिए कि यदि दूसरा तीसरा बच्चा करेंगे तो उस हिसाब से उसको छूट मिलनी चाहिए। जो 12 लाख की इनकम टैक्स की छूट है उसकी जगह उसको 15 लाख मिलनी चाहिए तीसरे बच्चे पर, और यदि चौथा बच्चा है तो उसको लाइफ टाइम इनकम टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ये भारत में भी हो सकता है। भारत में भी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फ़ायदा दिया जाना चाहिए, तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट्स किए जाने चाहिए। भारत में भी होना चाहिए। यदि आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपके लिए टैक्सेशन बिल्कुल अलग होगा। और जब आप करते हो तब क्या होता है, तब लोगों ने शादी करनी शुरू कर दी। हंगरी में जो लोग शादी नहीं कर रहे थे, डबल हो गया रेट शादी का, बच्चे पैदा होने का रेट डबल हो गया। सब कुछ बहुत ईजिली हो जाता है, सरकार यदि चाहे तो, सरकार अगर चाहेगी तो। कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, पपेट मीडिया, जलवा। तो कुल मिलाकर जो है सरकार को नियम कुछ बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लुभावनी स्कीम लानी पड़ेगी जिससे लोग सरकार की तरफ आए। अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए उस पर क्या कहना है भारत का, जरा सुने। In Ukraine having an impact far beyond the immediate conflict zone. India has been, for instance, caught up in the crossfire between Russia and the US and Europe related to the Ukraine conflict. That China has not been imposed 25% additional tariffs like on India for importing Russian crude shows the double standards that are clearly at play. Maybe our Chinese colleague can tell us the secret to success that China has with the United States by avoiding 25% additional tariffs like India has been imposed upon. Institutional rule-based systems are slow to adapt multipolarity-induced changes, but they become immobile rather than nimble. The case for reform of the United Nations Security Council is pending for many years. भारत का सीधा सीधा कहना है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि वही तेल चाइना भी खरीद रहा है, चाइना के ऊपर कोई आपने टैरिफ नहीं लगाया, 25% टैरिफ हट गया, हमारे ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों? पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका के बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों? सुनिए। Why should markets? There are markets right now that aren't open to some of our commodities. As a consequence of that, we got a big harvest coming in here in South Dakota, corn and soybeans, and no place to go with it. So what the president has said is, I'm going to support and I'm going to help. As a consequence of that, we got a big harvest coming in here in South Dakota, corn and soybeans, and no place to go with it. So what the president has said is, I'm going to support and I'm going to help our farmers. And so, big harvest, बड़ी फसल आने वाली सोयाबीन की। चाइना ने सोयाबीन उठाने से मना कर दिया, हम नहीं उठाएंगे। सोयाबीन जो इतना पैदा होता है अमेरिका में, उसका 60% से ज़्यादा सिर्फ चाइना उठाता है। अगर चाइना ने सोयाबीन नहीं उठाया तो वाट लग जाएगी अमेरिका की, सड़ेगा सोयाबीन और कॉर्न दोनों। कॉर्न भी उठाने से मना कर दिया। कॉर्न के लिए तो यहाँ प्रेशर बना रहे थे, कॉर्न हमारा लो, जो ले रहे थे हमने वो भी बंद कर दिया। खैर देखेंगे, वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अमेरिका के लिए दिन अच्छे नहीं है। अगर सबने मिलकर अगर उठाना बंद कर दिया तो उनका फसल ही इनकी पूरी बर्बाद हो जाएगी। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरेगा, नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पर ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आगे बढ़ता हूँ और आगे देखते हैं क्या है। तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। सर, तमिलनाडु में जो स्टैम्पेड हुआ था कल, हमने जिसको कवर किया था, जरा उसकी एक नज़र देख लें। अभी तक जो जूते चप्पल हैं वही पड़े हुए हैं। ओहो, सोचिए क्या हालत हो गई है, क्या हालत है। 41 लोगों के मरने की खबर आ रही, 41। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई साहब देश के अंदर, कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बस अगर नहीं बात कर रहे तो तमिलनाडु के लोगों की। क्यों? तमिलनाडु के लोगों की जिंदगी नहीं है, वो इंसान नहीं है। उनके जो 2 साल का बच्चा मरा सर, 2 साल का बच्चा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा हैरान हूं मैं तो देखकर, इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई बात ही नहीं कर रहा। सब ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी कोई बज़ नहीं बन रहा। क्यों बनना चाहिए भाई? ये तो बहुत गलत बात है। आइए देखें, निर्मला ताई को भेजा है केंद्र ने। உயிரிழப்பு அந்த நம்பரும் கூடிக்கிட்டே வருது. அதை தவிர அந்த சம்பவத்தில் அடிபட்டவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க. இப்படியாக செய்தி வந்துட்டு இருந்தது। निर्मला सीतारमण को भेजा केंद्रीय मंत्री
मोदी सरकार की तरफ से इनको भेजा गया और ये ढांढस बनाने का काम कर रही हैं। वहाँ जाकर कह रही हैं जो कुछ हमसे मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। तमिलनाडु के लोगों के साथ हम हैं इस बुरे वक्त में। ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से वो एक्टर विजय भाग गए, ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। चलिए, एक साइकिलिस्ट है, वो तमिलनाडु के लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं, सुनिए ज़रा और ज़रा विचार कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे गंदे बंदों की रेटिंग में मैं किसी स्टेट को रखना चाहता हूँ ना, तो वो है तमिलनाडु। देखो, आज सुबह से ट्रैवल करते हुए गांव में रुका हूँ और ये मंदिर नहीं, कम से कम 10-12 मंदिरों में पूछ लिया मैंने रुकने के लिए, सबने मना कर दिया। एक दुकान के पास पूछा रुकने के लिए, उसने मना कर दिया। मैंने सोचा टेंट लगा देता हूँ। अब रुके तो रुके कहाँ भाई साहब, कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। मैंने सब कुछ दिखा दिया, आधार कार्ड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, बता दिया कि ऐसे यात्रा कर रहा हूँ। तो अगर सबसे गंदे बंदे देखा जाए ना, तो वो तमिलनाडु में अभी तक सबसे गंदे बंदे। कभी मनाना दोस्तों तमिलनाडु। अगर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं हमने, लेकिन हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, ये दूसरी बार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? मंदिर में क्यों नहीं रुकने दे रहे? क्या प्रॉब्लम है? आधार कार्ड दे रहा, सब कुछ दे रहा, हिंदू है। हिंदी के चक्कर में तो नहीं है प्रॉब्लम कि आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदी ब्लॉग्स बनाते हो, हाँ, इसलिए तो नहीं है कहीं। अयो नितिन माचा विजय इज क्रिश्चियन, वी डोंट टॉक। अच्छा, तो क्यों नहीं रुकने देते हैं? तो बड़ी गजब बात है। हिंदी की वजह से तो नहीं। जो लोग हिंदी के खिलाफ थे और तमिल के साथ में थे, अचानक वहाँ जो है कुछ बदलाव आ गया। देखें, सॉरी तमिल नहीं, कन्नडिगा के साथ में थे। अयो अयो रामा, हिंदी बोलने पे मारते थे जी। अयो अभी कैसे एक पेंगुइन आके औकात दिखा के चली गई जी। भाषा किधर गया? तू औरत है सिद्धरामैया की। ओरे बाप रे बाप, अब कुछ नहीं कर पाए। पर ये लोग तो आपके साथ में थे, याद है जो एजिटेशन हो रहे थे कन्नडिगा केस में, उसमें टोपी लगा के घूम रहे थे खूब सारे लोग। यही असलियत है, यही रियलिटी है। ठीक है, आपको लड़ाने के लिए सब कुछ होगा, लेकिन आप समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसी राम। एक बड़ा खुलासा किया एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम जी ने, पूर्व गृह मंत्री। क्या कह रहे हैं सुनने। The whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. तो साहब, Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind. Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who matter. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the NEA and the IFS that we should not physically react to the situation. गजब हो गया साहब। चिदम्बरम साहब बता रहे हैं कि जब भारत के ऊपर हमला हुआ था कसाब वाला, तो उसके बाद जो है कोंडोलेज़ा राइस जो है उड़कर आई थी भारत। उन्होंने बोले आपको अटैक नहीं करना, आप अटैक नहीं करना। करेंगे, मेरे मन में था कि कुछ तो हमें करना चाहिए, लेकिन बाद में मालूम चला कि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इनकी ज़्यादा चली और उनका ये मानना है कि नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और फाइनली जो है हमने कुछ नहीं किया। वाह, गजब। तो भारत की सरकार को कौन चला रहा था यूपीए के टाइम पर? अमेरिका, कोंडोलेज़ा राइस। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। चलो धन्यवाद, आज मालूम चल रहा है। धन्यवाद देंगे चिदम्बरम साहब का कि आपने कम से कम सच्चाई तो सामने लाए। यूपी वॉज दलाल ऑफ वेस्ट, वो सर चलिए उनके उस पर। तभी तो कह रहे थे पहले डिक्टेशन लेता था भारत, आजकल लेता नहीं, हमें बुरा लगता है। आइए, एक फ्रेंच इंडिया में आए, ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, देखें जरा क्या हुआ। I only speak two. French and English. French and English. Malafasi. You speak Farsi? Farsi, no. No, you speak Farsi. French people say you speak Farsi. Oh, français. Oui, je parle français. Un petit peu. Petit, l'oiseau frissonne. You mean of this? Oui. How many languages? तोते उड़ गए भाई उसके। वो सोचा था सारे अनपढ़ हैं यहाँ पे, ऐसे ही सुना था उसने। वो तो फ्लुएंट फ्रेंच बोल दी उसने। बोले फ्रांस से आए हो, अच्छा, उसी की भाषा में बात कर दी। तोते उड़ गए भाई के।
भारत में बहुत प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है, कमी नहीं है प्रतिभा की। बस ये कि हम उसको मौका नहीं देते आगे बढ़ने का। चलिए, एक और निवेदन आप लोगों से आज कर दूं आगे बढ़ने से पहले। हाथ जोड़ के आप सबसे एक निवेदन है, आप सब मुझे देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहरबानी करके बस आपको देखते हैं इसलिए फ़ोन लगा था, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता, हमारे पास दवा खाने का भी समय नहीं होता है। इतना काम करते हैं हम आप लोगों के लिए, है ना, ऐसे फ्री में नहीं आते। आपको लगता हो ना बहुत ईजी लाइफ है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ है, बहुत मुश्किल लाइफ है। अगर आप हमारी लाइफ 2 दिन भी जिएंगे तो आप कहेंगे बस राम राम, हम वैसे ही ठीक है, हमें कोई ना पहचाने, वहाँ तक ही ठीक है। तो इसलिए कृपया कर समय ख़राब ना करें। कोई अर्जेंट बात हो तो सिर्फ 10 से 11 के बीच ही फ़ोन करना है, ठीक है ना। और आवाज़ सुननी थी, आपको देखते हैं, मालूम है आप देखते हो, आप यहाँ कमेंट कर लो ना, सुपर चैट यहाँ पे डालो, उसमें क्या दिक्कत है। आप मुझे देखते हो, यहाँ पर आके मुझे यहाँ अलो कर दिया करो, ठीक है। यहाँ नहीं कर सकते तो सुपर थैंक्स में अलो कर दिया करो। बाद में एक दिल बना रहता, आई लव नितिन शुक्ला वाला, उसको दबा दिया करो, उसमें डॉलर भी बना हुआ है, तो वहाँ सुपर थैंक्स में कर दिया करो, मैं वहाँ रिस्पॉन्ड कर दूँगा, आपके टेक्स्ट मैसेज का वहाँ रिप्लाई करूँगा, है ना। ठीक, टेलीग्राम के चैनल पे भी मैं टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा, वहाँ पर भी पैसा लगना है ना। व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, उस पर भी पैसे वाला सिस्टम नहीं किया, जब कर देंगे तो उस पर भी रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है। विल नॉट डू एनीथिंग फॉर फ्री, वाई, बिकॉज वी वांट सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल टू कॉन्टैक्ट अस। कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई बात हो तब, ठीक है ना। चलिए, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कर दीजिएगा, अपना अमाउंट भर दीजिएगा, नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। कितने भक्त हैं हमारे यहाँ, कौन कौन चाह रहा है अपनी जीभ, अपनी आँख, अपनी गर्दन, कोई बता ही नहीं रहा, हाथ कुछ तो चढ़ाओ, नहीं प्रसाद है। भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा तो जहर पीते हैं धतूरे का, किसके दूं, पिएगा भड़वे। आज ही मुझसे किसी ने कहा था आप कंट्रोल करो, गुस्सा आ जाती है, क्या करें। कौन कौन पिएगा, दूं जहर, धतूरा पीस के दूं, पिएगा। हाँ, वैसे बैत ही बैत मारनी चाहिए, पिछवाड़े पे डबल हो जाए, पिछवाड़ा सूझ के। धर्म के नाम पर क्यों करते हो ये सब, तुम्हें जो करना आपने उस पर करो। नाली के कीड़ों, हमारे धर्म को बदनाम मत करो भाई। क्या दूसरे से तो बाद में लड़े, पहले अपनों को तो सुधार लें। कहते आपको एक बार मौका मिलना चाहिए, अरे मिल गया तो पता क्या होगा, आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, उसमें बचे हुए आधे सुसाइड कर लेंगे, 25% बचेंगे। चलो भाई, हाँ देश को भी, करेक्ट, देश के नाम पे भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आइए, देश